ہماری نشستیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادات، احوال اور افعال کی کیفیات کے بیان پر مشتمل ہوئی۔ یہ سلسلہ ہمارا آگے چند ایک نشستوں تک مزید چلے گا، مگر آج کی نشست میں اس سلسلے کو موقوف کرتے ہوئے فرمائشی گفتگو ہے کہ آج کوئی ذوق کی بات کی جائے، محبت کی بات کی جائے۔ ذوق اور محبت میں کیونکہ ایک طویل سلسلہ ہے جس کے عموماً ہم عوام الناس عادی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذوق کی باتیں بھی ہونی چاہیے۔ سو فرمائش کی گئی کہ آج کی نشست جمعہ میں کوئی ذوق کی اور محبت کی بات ہو، کوئی یار دی گل سنا جیسے کہا جائے، تو وہ آج ذوق اور محبت کی بات کرتے ہیں، مگر اس کو انہی گفتگو کے ساتھ جوڑ کے کرتے ہیں تاکہ مطابقت بھی، یہ جو 11-12 نشستیں ہماری پیچھے ایک مضمون پر ہوگی، ان کے ساتھ مطابقت بھی رہے، ذوق اور محبت کی بات بھی ہو اور ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملے۔ اس مناسبت سے جو آیا مبارکہ 2 مقامات سے میں نے مبارک کلمات پڑھے۔ پہلے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، چونکہ وقت کم ہوتا ہے میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ چیزیں لے سکوں، جتنا ہمارا نصیب ہوگا حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق کی سوغات اتنی ہمیں مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ آیت کی ابتدا جو کی اللہ رب العزت نے، ابتدا میں لفظ قل کہا، اور قل کے ذریعے چونکہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اور اس پر ہم پہلے بھی گفتگو 1 یا 2 نشستوں میں ہم کر آئے ہیں، اور اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی حضور علیہ السلام کی بشریت کے بیان میں۔ قل کے ذریعے دعویٰ کیا جاتا ہے، اور دعویٰ ہمیشہ امر نظری میں ہوتا ہے، بدیہیات میں دعویٰ نہیں ہوتا۔ اب وقت نہیں کہ ہم صرف اسی کی تفسیر کریں، اگر اس کی تفسیر اور تفصیل میں جائیں گے تو گفتگو اسی میں گھوم کے رہ جائے گی۔ میں صرف سادہ سی بات ایک سمجھا کے پھر آگے اس سے بڑھتا ہوں۔ بدیہیات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو بغیر غور فکر کے سمجھ آ جائیں، جو عقل میں آ جائیں بغیر کسی دلیل کے۔ یوں سمجھ لیں کہ بدیہی محتاج دلیل نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی مثال ہم کہتے ہیں پانی کو بہنے کی عادت ہے، پانی ریان ہوتا ہے بہنے والا، اب بغیر کسی دلیل کے بات سمجھ آتی ہے کہ پانی میں بہنے کی صلاحیت ہے، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو امر بدیہی کہتے ہیں، جو چیز بغیر دلیل کے سمجھ آ جائے۔ مثلا کبھی کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کہتا ہوں آگ گرم ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آگ کا گرم ہونا بغیر دلیل کے سمجھ آتا ہے، اس کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں، اس کو کہتے ہیں امر بدیہی۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں سورج روشن ہوتا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں سورج روشن ہوتا ہے، اس میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ یہ چیز بغیر دلیل کے سمجھ آتی ہے کہ سورج روشن ہوتا ہے۔ سو جو شے بغیر دلیل کے سمجھ آ جائے اسے امر بدیہی کہتے ہیں، اور جس میں غور کرنا پڑے، جس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے، اسے امر نظری کہتے ہیں۔ جب دونوں کی تعریف آپ سمجھ گئے، اب جو دعویٰ ہوتا ہے کلام عرب میں، دعویٰ ہمیشہ امر نظری میں ہوتا ہے، بدیہی میں کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ بدیہی تو بغیر دلیل کے سمجھ آ جاتی ہے، اس میں دعوے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو سمجھ آ گئی، مان لیا ہر کسی نے۔ دعویٰ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ دلیل کی ضرورت ہو،
یا یوں ہم آسان سی تعریف کر لیں، دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے، دلیل کے بغیر دعویٰ نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ رب العزت کا فرمانا، کل محبوب آپ دعویٰ کر دیں، آپ فرما دیں۔ کیوں دعویٰ کروایا؟ بات کیا ہے؟ آگے کہہ رہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ جو کہا ابتدا میں دعویٰ کیوں کروایا؟ اس لیے فرمایا کہ لوگ مغالطے میں نہ پڑ جائیں۔ لوگ سوچ رہے تھے ہم تو خدا کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، ہم تو مصطفیٰ اور خدا کی قربت کو پانا چاہتے ہیں، ہم کعبے میں جانا چاہتے ہیں، خدا کہتا ہے فاتبعونی، مدینے میں جاؤ۔ ہم تو خدا کو تکنا چاہ رہے ہیں، خدا کہتا ہے فاتبعونی، مصطفیٰ کے پاس آؤ۔ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، خدا کہتا ہے مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ جو مغالطہ پیدا ہو رہا تھا دوئی کا، اس کے لیے خدا نے کہا کل محبوب اعلان کر دے، دعویٰ کر دے کہ صرف خدا کی تلاش میں سرگرداں ہونے والوں اور صرف رب رب کرنے والوں اور دونوں میں فرق پیدا کرنے والوں، لفظ کل کے ساتھ دعویٰ پیدا کر کے خدا کہہ رہا ہے محبوب اعلان کر فاتبعونی یحببکم اللہ، جو خدا کو پانا چاہتا ہے مصطفیٰ کے پاس آئے۔ ہم ہیں تو دو، ذاتیں تو دو ہیں، میں ہوں تو ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مگر خدا خدا ہو کر مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ مصطفیٰ ہو کر خدا سے جدا نہیں۔ محبوب کل کے ساتھ دعویٰ کر دے جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تیرا نہ ہوا وہ میرا نہ ہوا، با خدا خدا کا یہی ہے در۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ راستہ سمجھایا ہے، اگر میری قربت کو پانا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جب یہ بات ہم سمجھ گئے، اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت ہمارا اختتام کی طرف، اس میں انتہائی توجہ، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اب اتباع کی تعریف اگر ہم لغوی اور لغت کی کتابوں سے کرنے کی بجائے وہ تعریف کرتا ہوں جو عام سادہ عام فہم اور ہماری زبان کا لفظ ہے، ہم عموماً بولتے سنتے ہیں۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ کسی کی محبت کو اپنی ذات پر اتنا غالب کر لینا کہ اس کی محبت میں مغلوب ہو کر اندھا دھند اس کے پیچھے چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اندھا دھند، جسے ہم عام بولتے ہیں لفظ کہ اس نے فلاں کی اندھی تقلید کی، اس کی محبت میں اندھی تقلید کر رہے گی۔ تو کسی کی محبت کو اپنی ذات پر اتنا سوار کر لینا کہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا، نہیں دیکھنا نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، نہیں دیکھنا اس راستے پہ چلنے سے کچھ بچتا ہے یا سب جلتا ہے، سب بچے یا سب جلے، اس سے سروکار نہیں، بس یار کے قدموں کے نشان ملیں، آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑے، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہی تقاضا کیا ہے، خدا نے کہا مجھے پانا چاہتے ہو تو سنو فاتبعونی، میرے یار کے قدموں کے نشانات کے پیچھے پیچھے چل پڑو۔ یہ جو 11-12 نشستیں ہماری ہوئی ہیں آقا علیہ السلام کی مبارک عادات پر ایک تسلسل کے ساتھ، اسی لیے تو یہ ساری گفتگو کی ہے کہ ہم دیکھیں آقا علیہ السلام کا رہن سہن کیسا تھا، حضور علیہ السلام کے معمولات کیسے تھے، آقا علیہ السلام کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، حضور کا مبارک بستر کیسا تھا، کھانستے کیسے تھے، جمائی کیسے لیتے تھے، چھینکتے کیسے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، مبارک بستر کیسا تھا حضور کا، لیٹنا کیسا تھا، لیٹتے ہوئے دعائیں کون سی پڑھتے تھے، کھانے میں کیا پسند تھا، محبوب غذائیں کیا تھی، پینا کیا تھا، بیٹھ کے کھانے کے انداز کیا تھے حضور کے۔
अंदाज नशिस्त क्या था, बर्खास्त क्या था, बर्तन कौन से पसंद किए, लिबास कौन सा पसंद किया, रंग कौन सा पसंद किया, क्या क्या चीजें इस्तेमाल में लाए, किन किन चीजों को छोड़ा। ये सिर्फ इसीलिए तो था कि ताकि हमें पता चले यार के कदमों के निशान इस गली में मिलते हैं, आंखें बंद करके पीछे पीछे चल पड़े। उस गली में जाने से खुदा मिलता है। अल्लाह ने कहा फत्तबिऊनी, महबूब इनसे कहें मुझे पाना है तो आंखें बंद करके तेरे पीछे चलें। जो तेरे पीछे आ जाएगा युहबिबकुमुल्लाह, उसे अब ढूंढना नहीं पड़ेगा। अल्लाह कहता है मैं अपना आप उसे दे दूंगा। अल्लामा ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, सब लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह कहता है मैं अपना आप फिर तुम्हें दे दूंगा, बस इतना करो फत्तबिऊनी, मेरे यार के पीछे आंखें बंद करके चल पड़ो। अब किसी से मोहब्बत कई वजूहात से हो सकती है। किसी से मोहब्बत इंसान चेहरे के ज़ाहरी हुस्न जमाल की वजह से करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा अगर जमाल की वजह से मोहब्बत करने की आदत रखते हो तो आओ मेरे महबूब का सरापा देखो, कायनात में ऐसा हसीन व जमील नहीं मिलेगा जो यार का हुस्न है। किसी को मोहब्बत, कोई कहता है मुझे हुस्न और ज़ाहरी जमाल से कोई सरोकार नहीं, मैं तो क्वालिटी देखता हूँ, खूबियां देखता हूँ, इजाफी खूबियां इसके पास क्या हैं, मैं तो उन खूबियों से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अगर इजाफी खूबियों की वजह से मोहब्बत करने की आदत रखते हो तो आओ मदीना में मुस्तफ़ा की खूबियों को देखो। ऐसी इजाफी खूबियां किसी और जगह पे नहीं मिलेंगी। हमारे यहाँ जो हवासे खमसा हैं, 5 हिस्से जिनसे हम पकड़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, चलते हैं, हवासे खमसा, ये हवासे खमसा हमारे, और इनमें अगर कोई इजाफी खूबियां आ जाएं, हम सिर्फ सामने देखते हैं। और हदीसे बुखारी आका इस्लाम ने फरमाया सहाबा मैं नमाज की हालत में खड़ा होता हूं, तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता हूं, मुसल्ला इमामत पे होता हूं, चेहरा आंखें मेरी सामने होती हैं, मगर का खुदा की कसम मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, सजदे भी देखता हूं। हम पीछे नहीं देख सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जैसे आगे देखता हूं वैसे पीछे भी देखता हूं, जैसे जाहिर को देखता हूं इसी तरह बातिन को भी देखता हूं। तो इजाफी खूबियों की वजह से अगर किसी को मोहब्बत करने की आदत है, खुदा दावत दे के बुलाता है आओ मदीना में मेरे यार के जलवों को देखो। बू अली सीना, उसने बादशाह को खत लिखा, बादशाह के खुद्दाम वर्क कूटते थे उसके लिए, उसने खत लिख के भेजा। 72 मील के फासले पे बादशाह का महल था। उसने खत लिख के भेजा, उसने कहा बादशाह आपके खादिम वर्क कूटते हैं उन औकात में जिनमें सोने का वक्त है, नींद में खलल आता है, नींद खराब होती है, इन्हें रोका जाए इन औकात में वर्क कूटने से। बादशाह ने खत पढ़ा, उसने कहा कि बू अली सीना यूं ही सुन सुना के किसी से इसने खत लिख दिया है, इसकी नींद में क्या खलल आता है, इतनी दूरी पे रहता है। उसने खत में जवाब लिख के भेजा, उसने कहा ठीक है मैं इन्हें रोकता हूं, मगर अपने खादिमों से कहा, उसने कहा दबा के कूटा करो, उसने कहा पता चल जाएगा कि ये सचमुच जानता है, ये ऐसे इसने खत लिखा है किसी के कहने पे। उसने खादिमों से कहा तुम दबा के कूटा करो। अब खादिमों ने उन औकात में भी कूटना शुरू कर दिया जो काम के थे, सोने के औकात में तो पहले से वो कूटते थे। जब वो कूटने लगे तो 3 दिनों के बाद उसने फिर खत लिख के रवाना किया। उसने कहा अब आपके खादिम और ज्यादा कूटने लगे हैं, वक्त बे वक्त कूटते हैं। अब उसे यकीन हुआ, अब यकीन हुआ उसे कि बू अली सीना जानता है 72 मील के फासले पर बू अली सीना पैदा होने वाली आवाज को उठा लेता है, उसके कान कबूल करते हैं। ये एक इजाफी खूबी थी। कुरान मजीद से इसकी शहादत ले लेते हैं, बड़ा मारूफ मुकाम है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका तख्त हवा में जा रहा है। कुरान मजीद कहता है 3 मील के फासले पर था जमीन से, 3 मील का फासला है, हवा की रफ्तार से जा रहा है। एक वादी के पहाड़ के गार के करीब से गुजरे तो हत्ता इजा अतऊ अला वादिन नमल, जब उस पहाड़ के करीब आए जिस पे चूंटियां थी, कालत नमला, एक चूंटी बोली जो सरदार थी उनकी, वो कहने लगी या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम,
उसने कहा अपनी चींटियों से सारी अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, मसाकिन में चली जाओ, उदखुलू मसाकिनकुम, सब दाखिल हो जाओ अपने अपने घरों में। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु, सुलेमान और उसके लश्कर के पांव तले आके कुचली ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो चने तुम पांव के नीचे आके खत्म हो जाओ। वहुम ला यशऊरून, और हजरत सुलेमान और उनके लश्कर को पता भी ना चले। जब उसने ये बात की, 3 मील के फासले पे चींटी बात कर रही है, हवा की रफ्तार से पैगंबर का तख्त जा रहा है। कुरान मजीद ने चींटी के इस कौल की तरदीद की, फरमाया फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाने लगे, नादान चींटी, तू चींटी हो के 3 मील के फासले पे मुझे देखती पहचानती जानती है, मैं सुलेमान हो के तुझे नहीं जान सकता? तू चींटी हो के 3 मील के फासले पे मुझे गुजरता देख के देख लेती है, पहचान जाती है, और मैं सुलेमान हो के क्या तेरी हालत को नहीं देख सकता, तुझे सुन नहीं सकता? अगर चींटी 3 मील के फासले से सुने और देखे, और हजरत सुलेमान 3 मील के फासले पर जमीन पे रींगने वाली चींटी को देखते हैं, और इधर अबू अली सीना 72 मील के फासले पर आवाज को कबूल करता है, कहा अबू अली सीना, कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम 3 मील क्या 72 मील क्या, फर्श से लोहे महफूज का सफर हजारों लाखों करोड़ों मील की मुसाफत पर है। फर्श पर बैठकर ताजदारे कायनात का ऐलान होता है, लोगों खुदा की कसम लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज फर्श पे सुनता हूं मैं। तो खुदा ने कहा अगर इजाफी खूबियों की वजह से किसी से मोहब्बत करने का जज्बा रखते हो तो आओ मेरे महबूब का सरापा देखो, ऐसी खूबियां हैं, कायनात की सारी खूबियां जमा करोगे मेरे महबूब की एक खूबी का मुकाबला नहीं। तो कब मोहब्बत की हकदार मेरे महबूब की जात है, इससे आके मोहब्बत करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह कहता है फिर अपना आप तुम्हें दे देता हूं। तो इसमें फरमाया इस तरफ आओ। अब जो ज़ौक़ और मोहब्बत की बात का कहा गया कि ज़ौक़ और मोहब्बत की बात करें, बहुत सारे गोशे हैं इसमें कि किस किस वजह से किस किस से मोहब्बत हो सकती है, और उन सारी वजूहात में अगर हम तलाश में निकलेंगे, सब की जहां पे जाके इंतहा होगी, हुजूर के मुबारक कदमों के निशान वहां से शुरू होते हैं। एक ही ज़ात है मोहब्बत के लायक कायनात में, मैं सभी को मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हर किसी से ऊपर हुजूर के कदमों के निशानात मिलेंगे। अब किसी से अगर ज़ाहरी जमाल और हुस्न की वजह से मोहब्बत होती है, कमाल ज़ाहरी हुस्न जमाल की वजह से किसी से मोहब्बत होती है, तो वो आका अलैहिस्सलाम के अगर जमाल को देखें, कायनात के सारे हसीन एक तरफ, सारे जमील एक तरफ, देखने वालों से पूछें कि देखने वालों ने क्या देखा। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं, सैयदना अबू हुरैरा की रिवायत बुखारी शरीफ में, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, अबू हुरैरा तुमने तो महबूब को देखा है, हुजूर का जमाल कैसा था? हजरत अबू हुरैरा का जवाब सुने, 4 साल तक लगातार हुजूर के साथ चिमट के रहे हैं, एक दिन का भी नागा नहीं है, क्योंकि अब आखिर में इस्लाम कबूल किया था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 साल तक हुजूर के साथ चिमट के रहे, दामने अक़दस से मस हो के रहे, एक दिन भी नागा नहीं आया मुलाकात में। अब किसी ने पूछा हुजूर का जमाल कैसा था अबू हुरैरा, तुमने तो जी भर भर के देखा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, लोगों यूं लगता था हुजूर के मुखड़े के जमाल में सूरज और चांद भी तैर के गोते खा रही होती है। ये सूरज और चांद को भी जो खैरात मिली है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अक़दस के नूर की खैरात है। सूरज के पास जो चमक है, चांद के पास जो चांदनी है, ये हुजूर के मुबारक मुखड़े की खैरात है। हजरत काब इब्ने मालिक से किसी ने पूछा हुजूर के मुबारक जमाल का हाल क्या है? काब इब्ने मालिक आका अलैहिस्सलाम के दरबारी सना खानों में से एक हैं, हुजूर के शुआरा में से हैं। उनसे किसी ने पूछा हुजूर का मुखड़ा कैसा था, जमाल कैसा था? उन्होंने कहा
क़ित्अतुम मिनल क़मर, हुजूर का मुखड़ा चांद का एक टुकड़ा था, चांद का टुकड़ा था। पूछने वाले ने कहा जनाब हर किसी ने तो हुजूर का चेहरा चांद की तरह कहा, आप चांद का टुकड़ा कहते हैं, वजह इसकी क्या है? और ये सब अहादीस हैं। सैयदना बरा बिन आजिब की हदीस है, जाबिर बिन समुरा की रिवायत है, जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत है, अनस इब्न मालिक की रिवायत है, इमाम हसन की रिवायत है, मौला मुर्तजा की रिवायत है, रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन। सब एक ही बात करते हैं। पूछने वाला पूछता हुजूर का मुखड़ा कैसा था? कहते हैं चांद की तरह था, चांद की मिसल था, 14वीं के चांद की तरह था। उसने कहा सब चांद की मिसल कहते हैं, चांद की तरह कहते हैं, आप चांद का टुकड़ा कहते हैं, वजह इसकी क्या है? आपने अलग बात क्यों की? हजरत काब इब्न मालिक कहने लगे कि चांद की मिसल क्यों कहूं, चांद के चेहरे पर दाग हैं, टुकड़ा इस वजह से कहता हूं जो साफ हिस्सा था वो निकल गया, चेहरा मुस्तफा में खुदा की कसम लोगों कोई दाग नहीं है, चेहरा मुस्तफा में कोई ऐब नहीं है। खुदा ने महबूब का चेहरा हर ऐब से पाक बनाया है, मुबर्रा बनाया है। चांद से तुझको तशबीह दूं, ये भी भला कोई इंसाफ है? चांद के चेहरे पे छाइयां हैं, मदनी का चेहरा साफ है। किसी ने क्या, ये हदीस का तर्जुमा है। तो उन्होंने कहा हुजूर के मुखड़े को अल्लाह ने निकाल दिया, एक टुकड़ा है चांद का, बस चमक और रोशनी ही रोशनी है, इस रोशनी में दाग नहीं है, इसलिए चांद की तरह नहीं कहता, चांदनी का टुकड़ा कहता हूं। तो ये देखने वालों ने, और फिर आज के दौर की अगर हम बात करें, जमाना करीब की बात करें, ये उन लोगों के तज़किरे हैं जिन्होंने देखा था। अगर आज के एक सूफी आशिक का जिक्र करें, आला हजरत गोलड़वी पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब आपने देखा हुजूर अली सलाम के जमाले बेनजीर का नजारा किया, तो इस पर आला हजरत गोलड़वी ने क्या खूब कहा, अत्तैफु सरा मिन तलअतिही, फरमाने लगे लोगों ये नहीं कहा कि मैंने हुजूर को जब देखा, नहीं, कहते हैं जब हुजूर का ख्याल मेरे ख्याल से गुजरा। अत्तैफ ये फलसफे को कहते हैं, ख्याल को कहते हैं। अत्तैफ सरा मिन तलअतिही, जब उनका ख्याल मेरे बामे ख्याल से गुजरा। और आगे कहते हैं कि मुझे फिर हुजूर की मुबारक जुल्फों ने सारे माहौल को मुअत्तर कर दिया, सारा माहौल हुजूर की जुल्फों से जगमगा उठा, नूर से निहा गया। वशुज़्बु बदा मिन वफरतिही, सारा माहौल। एक है जुल्फों की 3 किस्में हैं, 3 किस्में, एक है जुम्मा, एक है लिम्मा, एक है वफरा। आधे कान के दरमियान तक जुल्फें आका इस्लाम की होती, उसे जुम्मा कहते थे। कानों की लौ तक मुबारक जुल्फें बढ़ जाती, उसे लिम्मा कहते थे। और मुबारक शानों तक, गर्दन तक आके लहराती तो उन्हें वफरा कहते थे। मालूम ये होता है जब पीर मेर अली शाह साहब ने देखा, क्या खूब नजारा था, सामने हुजूर मुस्कुरा रहे थे, इधर कंधों तक मुबारक कुंडल वाली जुल्फें लहरा रही थी, और पीर मेर अली शाह साहब कहते हैं वशुज़्बु बदा मिन वफरतिही, वो वफिरा कुंडल वाली जुल्फें लहरा लहरा के पूरे माहौल को नूर से मुअत्तर कर रही थी, मुनव्वर कर रही थी। और आगे कहते हैं, ये तो सिर्फ अभी तक ख्याल की बात की, आगे कहते हैं जब मैंने देखा फसुकिरतु हुना मिन नजरतिही, जब मैंने देखा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पीर मेर अली शाह साहब के अल्फाज तो ये हैं फसुकिरतु हुना मिन नजरतिही। अब इसका तर्जुमा अगर मैं अपने जौक से करना चाहूं, पीर मेर अली शाह साहब के कलिमात का तर्जुमा मैं करूं अपने कलिमात से, तो गोया इस बात पे वो बात फिट सादिक आती है कि बिल्कुल उसी तरह का हुजूर ऐसे हुआ मेरे साथ जैसे मूसा के साथ तूर पे हुआ था। मूसा जब बेहोश होके गिर गए थे, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका, जैसे मूसा ने तजल्ली देखी बेहोश होके गिर गए। कहते हैं फसुकिरतु हुना मिन नजरतिही, मैं मदहोश होके रह गया जब आका आपको देखा, आलमे मदहोशी में चला गया। मगर कहते हैं एक फर्क था, नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां, एक फर्क था, मूसा बेहोश हो गए थे, मैं मदहोशी के आलम में देखता रहा, देखता रहा। पूछा मेर अली देखते रहे तो बताओ कैसा पाया, हुजूर का मुखड़ा कैसा था, जमाल कैसा था,
जमाल कैसा था, हुस्न कैसा था। कहते हैं क्या बताऊं, सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा आसाना का, मा अकमला का। अब ये सीगा ताज्जुब है, मा आसाना का, मा अजमला का सीगा ताज्जुब है। एक होता है फाइल, फाइल कहते हैं फेल सादिर जब हो जिस जात से, उसको फाइल कहते हैं। फेल किसी से सादिर हुआ, उस पे साबित आया सदाकत की, तो उसे फाइल कहते हैं। एक होता है सिफत मौसूफ के साथ इस तरह मुत्तसिफ हो जाए कि कभी सिफत मौसूफ से जुदा ना हो किसी हाल में भी, उसे सीगा सिफत कहते हैं, सिफत मुशब्बा, सीगा सिफत मुशब्बा। एक होता है माना मसदरी में जब जोर पैदा कर दिया जाए, उसे कहते हैं मुबालगा। ये इस्तिलाहात है इल्मी, मगर आपकी समझ में बात इंशाअल्लाह आ जाएगी। माना मसदरी में जोर पैदा किया जाए उसे मुबालगा कहते हैं। जैसे आलिम अब जोर पैदा करना चाहें उसके इल्म में तो कह देते अल्लामा, आलिम से अल्लामा, उसकी ज्यादा अजमत है इसमें। एक होती है माना मसदरी में मुकाबले में किसी को ज्यादा करना, उसे कहते हैं तफजील, फुलां फुलां से ज्यादा है, फुलां भी सखी है मगर वो उससे ज्यादा सखी है। एक का दूसरे में मुकाबला करके दूसरे को अफजल कर देना, इसको कहते हैं तफजील। जब किसी की बात फाइल से पूरी ना हो, किसी की बात सीगा सिफत मुशब्बा से पूरी ना हो, किसी की बात मुबालगे से पूरी ना हो, किसी का घर तफजील से पूरा ना हो रहा हो, ये चारों चीजें जब नीचे रह जाएं, कहा फाइल कहें नहीं कह सकते, सीगा सिफत से तेरी बात करें नहीं कर सकते, मुबालगे से कहें कि बड़ा खूबसूरत था ये नहीं कह सकते, सिफते इसमें तफजील से बात करें कि सारे जमाने से सोना था, का इसमें तफजील भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चारों जब नीचे रह जाएं, इनसे ऊपर आता है फेले ताज्जुब। फेले ताज्जुब होता है सब नीचे रह गया, लोगों क्या बताऊं, खुदा की खुदाई में मोहम्मद एक ही आया था। ये है फेले ताज्जुब। जब हर इस्तिलाह इल्म नीचे रह जाए, दम तोड़ जाए, अब फेले ताज्जुब आता है। इंसान मदहोश होके एक ही बात कहता है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तुम पूछते हो क्या देखा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। यार को देखा था यूं लगता था जैसे खुदा को देखा है। ये देखने वाले कहा करते हैं सूरत तेरी अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जिन्होंने देखा, नजारा किया, हर रंग में, हर कमाल और हर जमाल में अल्लाह ने हुजूर को बुलंद किया। एक आखिरी बात कह के खत्म करूं, बड़ी सादा और इल्म से दूर ले जाके, और आप कसरत के साथ सुनते सुनाते इन बात ये आपकी समातों में आती रहती है। और बड़ी प्यारी हदीस और बड़ा प्यारा वाकया है। आका अलैहिस्सलाम ने एक बाजार में जा रहे हैं तो एक ऊंट का सौदा कर लिया। जब सौदा हुआ तो फरमाया मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, मैं आया था किसी काम से, तिजारत मेरा इरादा नहीं था, मुझे ऊंट पसंद आ गया तो खरीद लिया, पैसे मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं घर जाता हूं, ऊंट दे दो, मैं पैसे जाके भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाएं। जब आका अलैहिस्सलाम ऊंट लेके चले, अब तक वो सारे जो पीर मेर अली शाह साहब ने कहा एक ही बात में थे, फसुकिरतु हुना मिन नजरतिही, हुजूर को देख रहे थे, मदहोशी के आलम में थे। जब लेके चले तो अब उन्हें होश आया और हाथ मलने लगे, कहने लगे ऊंट तो लेके चले गए, पैसे तो दिए नहीं, क्या तू जानता है उसे? एक दूसरे से पूछते हैं। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। उसने कहा तू जानता है? कहा नहीं जानता। कहा जानता कोई नहीं तो ऊंट क्यों दे दिया? उन्होंने कहा वो बोलता इतना खूबसूरत बोलता हुआ नजर आ रहा था, यूं लगता था जैसे उसके दहन से गुलाब की पत्तियां झड़ रही हों, पैसों का तो ख्याल ही नहीं रहा, हम तो उसके जमाल के शैदाई बने देखते रहे हैं, पैसों का तो वहम भी नहीं आया। अब उन्होंने कहा जानता कोई नहीं, पहचानता कोई नहीं, हमारा ऊंट तो गया, डूब गए पैसे हमारे, चोरी हो गया ऊंट हमारा। जब ये बात की उन्होंने तो उनके खेमे की ओर से एक खातून बीबी उनके साथ थी, उसने आवाज दे के कहा, उसने कहा ना कहो कि ऊंट चोरी हो गया, मैं जमानत देती हूं तुम्हारा माल महफूज है, कीमत आ जाएगी। उन्होंने कहा खुदा का शुक्र है कि हमारा माल बच गया, कोई तो उसे जानता है, ये बीबी तो जानती है, अब इसकी जमानत है। उसने कहा जानती तो मैं भी नहीं,
जानती तो मैं भी नहीं। का जानती नहीं तो जमानत क्यों देती है? ये क्यों कहा कि माल आ जाएगा? उसने कहा ये तो सिर्फ मैं हूं, अब विजदान की बात करने लगा। उसने कहा ये तो सिर्फ मैं हूं, मैं तो फर्श पे रहने वाली क्या उनकी जमानत दूं? उनके एक दीदार पे तो अर्शी भी अपना आप फिदा करने को तैयार रहती हैं। जनाबे जिब्रील ने कहा था सिदरा पे, जब हुजूर जमाल के साथ आगे बढ़े तो जिब्रील ने कहा तू अज परी चा बख्तरी वज बरगे गुन नाजक तरी अज हर चे गोयम बेतरी तू हक्का अजाए बे दिल बरी। जिब्रील ने कहा आका मैंने तो हर किसी को देखा है, अज हर चे गोयम बेहतरी, आदम से लेके यूसुफ तक, यूसुफ से लेके हजरत ईसा तक, कायनात के सब हुस्न के शाहसवारों को मैंने देखा है, वही तो मैंने उनके पास पहुंचाई है। अगर सबका खुलासा भी जमा करके उनका हुस्न बयान करना चाहूं, तू हक्का अजायबे दिल भरी, 1,24,000 मिलके आका तेरे कदम का मुकाबला भी नहीं कर सकते। सबका जमाल, सबका हुस्न, सबका कमाल हुजूर तेरे दर की खैरात से था, तेरे सदके से था। तू अजहर चे गोयम बेतरी तू हक्का अजायबे दिल बरी। उसने कहा जानती तो मैं भी नहीं। कहा फिर जमानत क्यों देती है? उसने कहा खुदा की कसम, जब वो सौदा कर रहे थे मैं अपने खेमे की ओर से देख रही थी, इतना सोना है, दिल से आवाज पैदा हुई इतना खूबसूरत कभी झूठा नहीं हो सकता। अभी ये बातें कर रहे थे, उधर सहाबा इकराम कीमत लेके आ गए। कहा किसने सौदा किया है हमारे महबूब के साथ? उन्होंने कहा हमने। कहा ये खजूरें हैं, पहले कुछ खा लो, ये कीमत नहीं है, ये हमारी तरफ से खिदमत है, तवाज़ो है, खजूरें खाओ, अब बताओ तुम्हारी कीमत क्या है? वो कहने लगे किस चीज की कीमत? कहा जो सौदा किया है हमारे महबूब को ऊंट बेचा है। कहा ऊंट तो ऊंट रह गया, अब बाजारे मदीना में हमने अपना आप बेच लिया है, बस यार के पास ले चलो, महबूब का कलिमा पढ़ लें। तो हुजूर का मुखड़ा देखने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। कहने वाले हुजूर का मुखड़ा देख के कहते थे सूरज और चांद भी इसी दर का तवाफ करता है। लोगों, कायनात में अगर जमाल की वजह से किसी से मोहब्बत की जा सकती है तो हुजूर से बढ़ के खूबसूरत और जमील कोई नहीं आया। इजाफी खूबियों की वजह से, जिस पे हमने बहस की, गुफ्तगू की, अगर किसी से मोहब्बत हो सकती है, हुजूर से बढ़ के किसी के पास इजाफी खूबियां नहीं थी। अगर अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से किसी से मोहब्बत हो सकती है, खुदा दावत दे के कहता है मेरे महबूब की सफ़े जिंदगी का एक एक वर्ग फोल के डालो, देखो मेरे महबूब से बढ़ के किरदार किसी का नहीं, अखलाक किसी के नहीं, इंसानी हमदर्दी और किसी जगह पे नहीं मिलेगी। मदीना में आके देखो, सब कवानीन, रहमतें, शफकतों के चश्मे यहीं से फूटते हैं। एक ही हस्ती है कायनात में मोहब्बत के लायक, आका इस्लाम से टूट के मोहब्बत करें, अपनी अपनी औलादों को हुजूर के इश्क में फना करें। ये फरमाइशी गुफ्तगू थी हमारी, आज तसलसल से हटके थी। अगली नशिस्तों से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसी तसलसल से गुफ्तगू करेंगे। ये ज़ौक़ और मोहब्बत की बातें फरमाइशी थी, जो कुछ हो सका हुजूर के इश्क और मोहब्बत और जमाल में कहा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हम सब को हुजूर के जमाल की खैरात अल्लाह दे, हुजूर का दीदार जिंदगी में नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मौत के वक्त हुजूर का चेहरा अक़दस नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।